امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جارحیہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کی بہو، بیٹی، داماد اور نواسے سمیت شہید۔ تہران کے انقلاب اسکوائر اور مشہد میں امام علی رضا کے روزے پر گریہ زاری۔ روزے کے گنبد پر سرخ پرچم ہٹا کر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روزوں پر انقلاب کی علامت سرخ لائٹس روشن۔ شہادت پر ایران میں 40 روزہ سوگ، 7 روزہ تعطیلات کا اعلان۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی خبر پڑھتے ہوئے ایرانی ٹی وی اینکر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر علی شمخانی، آرمی چیف عبدالرحیم موسوی کی شہادت کی بھی تصدیق۔ وزیر دفاع امیر ناصر زادے اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور کی گزشتہ روز شہادت کی تصدیق کی جا چکی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کو نیا کمانڈر ان چیف نامزد کیا۔ اسرائیلی میڈیا کا ایران کے سابق صدر احمدی نیاد کی شہادت کا دعویٰ۔ ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد عبوری قیادت کونسل نے انتظام سنبھال لیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آئین کے 11ویں آرٹیکل کے تحت عبوری قیادت کونسل کے کام شروع کرنے کی تصدیق کر دی۔ آیت اللہ علی رضا آرافی ماہر قانون کے طور پر عبوری قیادت کونسل میں نامزد۔ ایران کے اسرائیل کے خلاف جوابی حملے۔ اسرائیلی قصبے بیت الشمیس میں ایرانی میزائل حملے میں 9 اسرائیلی ہلاک، 20 زخمی۔ میزائل حملے سے قبل علاقے میں سائرن کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ حملے کی زد میں آنے والی عمارت چند لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ تل ابیب، اشدود اور اسقلان سمیت مختلف شہروں میں سائرنز بج اٹھے۔ ایک میزائل مقبوضہ بیت المقدس میں آن گرا۔ ایران کا خلیج میں موجود ایرانی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر میزائل حملہ۔ ایئر کرافٹ کیریئر پر 4 میزائل داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور برطانیہ کے آئل ٹینکرز پر حملہ، 3 جہازوں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایران کے مشرق وسطی میں 27 امریکی فوجی اڈوں پر حملے، میزائل اور ڈرونز کا استعمال۔ قطر میں العدید بیس بھی نشانہ۔ کئی ایرانی میزائل دفاعی نظام کو چکمہ دیتے ہوئے اڈے پر آن لگے۔ قطر نے حملوں میں 18 شہری زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ دبئی ایئرپورٹ پر حملہ، پام جمیرہ میں ایک ڈرون گر کر تباہ۔ بحرین میں ایک ڈرون عمارت سے جا ٹکرایا، امریکی بحریہ کی بیس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کویت میں امریکی اڈے پر حملے کیے گئے۔ ایران کا متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، عمارت کو نقصان پہنچا۔ ابوظہبی میں زید بندرگاہ اور دبئی میں جبل علی پورٹ اور شارجہ میں ایک مقام پر دھوئیں کے بادل چھائے دیکھے گئے۔ آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرافکندگی برای اینها هیچ ارمغانی نخواهد داشت و ملت عزیز ما که امروز سوگوار درگذشت این شہید بزرگوار ہستند۔ ایرانی صدر نے فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کی مسلح افواج دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے، ہمیشہ کی طرح دشمنوں کو مایوس کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل جان لے کہ انہیں ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایرانی قوم آج عظیم شہید کی رحلت پر سوگوار ہے، متحد ہو کر دشمنوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد پہلا ویڈیو پیغام۔ ایرانی قوم کو غلام بنانے کا خواب خاک میں ملا دیں گے، فیصلہ کن جواب دیے جانے تک جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران پر حملہ آور دشمنوں کو بالآخر پچھتانا پڑے گا۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کا اعلان، قوم سے متحد رہنے کی اپیل۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 48 ایرانی رہنماؤں کی شہادت کا دعویٰ۔ 9 بحری جہاز تباہ اور ایرانی بحریہ کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا۔ نئی قیادت نے بات چیت کے لیے رابطہ کیا، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ امریکی صدر کا انٹرویو۔
24 घंटों में अमरीका और इसराइल के तेहरान पर 60 हमले, ईरान पर हमलों में मजमूई अमवात 201 हो गईं, 747 अफराद जख्मी। गर्ल्स स्कूल पर सफाकाना हमले में शहादतों की तादाद 148 तक जा पहुंची। इसराइली फौज का गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान पर 1200 से ज़ायद बम और मिसाइल गिराने का इतराफ़। तकरीबन 200 लड़ाका तैयारों ने कार्रवाई की। अमरीका ने ईरानी अहदाफ पर मिसाइल हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। अमरीका और इसराइल का तेहरान में ईरानी कौमी टीवी और रेडियो स्टेशन पर हमला, इमारतों के कुछ हिस्से मुतासिर, नशरियात मामूल के मुताबिक जारी रहीं। खलीज ओमान में अमरीका का पाबंदियों के खिलाफ वर्जी पर पहला हमला, ईरान तेल लाने वाले जहाज में आग भड़क उठी, हमले के 20 अफराद महफूज रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौजूदगी का मकाम CIA ने इसराइल को बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा, CIA को मालूम हुआ था कि तेहरान में हफ्ते को ईरानी क़यादत का आला सतह का इजलास होगा। मालूमात इसराइली हुकाम को दी गईं। अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर हदफ को निशाना बनाया। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर पाकिस्तान भर में एहतजाज, कराची में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, झड़पों में 10 अफराद जाँ बहक, 41 जख्मी। मुश्तलिल अफराद ने पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को आग लगा दी। सुल्तानाबाद पुल के नीचे ट्रैफिक पुलिस चौकी जला दी गई, मोटरसाइकिल भी नजर आतिश। नुमाइश चुरंगी पर एहतजाज, सिंध हुकूमत ने अमवात की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। कराची में ईरान से यकजहती के लिए अमरीकी काउंसिल खाने पर एहतजाज के दौरान जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शिरकत। जो नागवार खबर अमेरिकन कौंसलेट के बाहर सुनने को मिली है, ये इंतहाई तकलीफ़ की बात है, इंतहाई दुख की बात है। शहीद हो जाने वालों के खानवादों को सब्र की तलकीन करूँगा और आप सबसे अपील करूँगा कि इस मौके पर बाहमी इत्तेहाद और उल्फत, बाहमी यकजहती को मजबूत बनाते हुए हम अपनी इस गम का इजहार गम हुसैन की सूरत में करेंगे। मारूफ आलम दीन अल्लामा शहनशाह नकवी की अवाम से एहतजाज पुरअमन रखने की अपील। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर अफसोस का इजहार। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का बड़ा एहतजाज, पुलिस ने मुजाहिरीन को लाहौर में कायम अमरीकी काउंसलेट के बाहर जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन में शामिल नौजवान, खवातीन और बच्चे ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ नारे लगाते रहे। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस और इंतजामिया को मुजाहिरीन के साथ इज्जत और एहतराम का बर्ताव करने की हिदायत, इफ्तार के इंतजामात की तलकीन। इस्लामाबाद में ईरान से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, पुलिस ने मुजाहिरीन को रेड जोन से आपारा की तरफ धकेल दिया। रेड जोन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुजाहिरीन से मिलने खुद रेड जोन पहुंचे। पुरअमन तरीके से एहतजाज की अपील, किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर दाखिला ने खबरदार कर दिया। मुजाहिरीन के साथ एहतजाज में शामिल होने की पेशकश। पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन पुरअमन तरीके से। पेशावर में शहरियों की बड़ी तादाद ईरान से इजहारी यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आई। अमेरिकन काउंसलेट जाने की कोशिश पर पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे लगाते रहे। कोयटा में मजलिसे वहदते मुस्लिमीन की अलमदार रोड पर एहतजाजी रैली, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक रही। मुजाहिरीन बहिश्ते ज़ैनब कब्रिस्तान पहुंचकर मुंतशिर। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। एहतजाज के नाम पर किसी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना हो। एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाए, मुजाहिरीन कानून को हाथ में ना लें। MWM के सरबराह की अपील।
वज़ीर दिफा ने अवाम से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी। मुल्क में एहतजाज शिद्दत में बदला तो दुश्मन को फायदा होगा। पाकिस्तान ने हर फोरम पर ईरान की सिफारती हिमायत की। ख्वाजा से कौमी इत्तेहाद ही रियासत की ताकत करार दे दिया। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए गम का दिन है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलाक़ाई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी क़यादत की शिरकत। पाकिस्तान के खिदमत में अमन के क़याम के लिए किरदार समेत मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर। अफ़गान सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ईरान के अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। वज़ीर आज़म के खित्ते की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं से राबते। शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमा रवा अहमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारहियत और ईरान की जवाबी कार्रवाई पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का उर्दून के फरमा रवा को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस मुअख्खर करने का फैसला। मुजव्वज़ा दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। नई तारीख का ऐलान बाहमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हजारों अफराद का इसराइली सिफारत खानों की तरफ मार्च। बगदाद में ईरानी परचम थामे हजारों अफराद अमरीकी सिफारत खाने तक जा पहुंचे। पुलिस ने शेलिंग कर दी। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर अमरीकी शहरियों का अवाम से इजहार यकजहती। तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा में मुजाहिरीन अमरीकी काउंसलेट के बाहर जमा हो गए। खामनाई की तस्वीर उठाकर खिराज अकीदत पेश। श्रीनगर में शहरियों का शदीद एहतजाज। आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के खिलाफ दुनिया भर की तरह भारत में भी एहतजाजी मुजाहिरे। दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका और इसराइल ने सुर्ख लकीर उबूर कर ली। अपने किए की कीमत चुकाएंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की गुफ्तगू। अमरीका और इसराइल के रहनुमा इसराइल के गंदे मुजरिम हैं। ईरान पर हमलों के बदले तबाहकुन ज़रबें सहना पड़ेंगी। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर का टेलीविजन पर खिताब। इस्तारी ताकतें किसी मुल्क में दाखिल होती हैं तो मकसद सिर्फ वसाइल लूटना होता है। अमरीका में इक़्तिदार पर बैठा शख्स इसी लूट मार की जहनियत की मुकम्मल अलामत है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का इंटरव्यू। कहा, अमरीका और सहूनी रजीम ने ईरानियों का दिल जलाया। ईरानी भी अमरीका और सहूनी रजीम का दिल जलाएंगे। Third, the region and the world need a way out now. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई की मज़म्मत। कशीदगी के खात्मे और फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। फ्रांस की ईरान से अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरा करने की अपील। रूस की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की गई। जारियत के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का खिताब। कहा, दुश्मन के तमाम अड्डों और असासाजात को जायज़ फौजी हदफ शुमार किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान से जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ज़्यादा परवाज़ें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से मनसूख की गईं। ईरान के साथ यकजहती के लिए सना में हजारों हौसियों का मुजाहिरा। लेबनान, हिजबुल्लाह, ईरान और फ़लस्तीन के झंडे थामे शुरका का आयतुल्लाह ख़ामनाई को खिराज अक़ीदत।
लाहौर में जामे मस्जिद मंसूरा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के गायबाना नमाज जनाजा जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा हाफिज इदरीस ने इमामत की। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 415 तालिबान रजीम के एहलकार और ख्वारिज हलाक और 580 से जायद जख्मी। तालिबान रजीम के तबाह किए गए टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 171 हो गई। 130 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। जवानों ने अफगान तालिबान के मरकज पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 26 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। अमरीकी रियासत टेक्सास की शहर ऑस्टिन में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 14 जख्मी। FBI ने फायरिंग दहशतगर्दी का वाक़या होने का शुबा जाहिर कर दिया। अवाम की हुकूमत से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने की अपील। कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आ जाएगा, शहरियों की दुहाइयां। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलकर वतन वापस आ गई। सुपर 8 मरहले तक रसाई हासिल करने पर $8.5 लाख इनाम मिला। टूर्नामेंट में शिरकत की बुनियाद पर कौमी टीम को $3 लाख अमरीकी मिले। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और भारत फाइनल 4 में पहुंच गए। नॉकआउट मरहले में जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दिफाई चैंपियन भारत से टकराएंगे। अमरीकी फजाई हमले के बाद ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी का इशारा दे दिया। ईरान ने एशियाई क्वालिफाइंग राउंड में पहली पोजीशन हासिल करके मुसलसल चौथी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था।